Good morning to all. Welcome to my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exam PGT, TGT and 12th class UP, CBSE and ICSE board. My name is Dr. Rajesh Kumar. I have completed the syllabus of BSc, BTech and Polytechnic Diploma my YouTube channel in mixed language English and Hindi. Some lectures are totally English and these lectures are mixed language Hindi and English. If you doing the BSc, BTech and Polytechnic Diploma, then these lectures are most beneficial for you. I taught my previous video how to solve the partial differential equation by the variable separation method. In this series, in this lecture, I taught how to solve the one dimensional wave equation by the variable separation method and applying the some other conditions, initial conditions of this lectures. प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपना वेरिएबल सेपरेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस कराए और यहाँ पर भी ये आपका वेव इक्वेशन में कराने जा रहा हूँ जो आपका वेरिएबल सेपरेशन से होगा। सम मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं, आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल ये लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका इफ़ यू न्यू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। लेट स्टार्ट इन दिस वीडियो। Solution of the wave equations by the variable separation method. Let wave equation of this by the wave del 2 y over del t square equal to c square del 2 y over del of x 2. We taught in previous video here y is the dependent variable depend upon x and t. Then now let y equal to x t. It means आपने देखा y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंड कर रहा है t और x पर, तो आप क्या करते हैं कि y इक्वल टू लेट कर लेते हैं x एंड t। तो देखिए नाउ लेट y इक्वल टू x स्मॉल x एंड t ऑफ स्मॉल t। वी नो दैट y is depend x and t, so y is partial derivative with respect to x and t, but x is the function of x only. It means x is the function of small x इंडिविजुअल सेपरेटली x केवल x का फंक्शन है एंड t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली। सो विद द डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन ओनली सिंपल dx over dx and dt over dt. Now we can say that here x is the function of small x only and capital T is the function of small of t. We know that y depend upon x and t, but x depend upon small x and t depend upon small of t. Now can write this form in y equal to x and t. Now differentiating with respect to x, then t is the constant, so del y over del x, it means t dx over of dx. Here you see that y is the depend upon x and t, it means y is the single dependent variable depend upon two independent variable x and t. So y का partial derivative होगा x के respect में, but x is the function of x only, t is the function of t only, so t is the constant, x केवल small x का function है, इस वजह से dx over dt लिखा जाएगा। Again now differentiating del 2y over del x2 equal to t d2x over dx2. We get the value of this del 2y over del x2 in term of this. Similarly del 2y over del t square equal to x is the constant, then t is the variable d2t over dt of square. We are putting the value of del 2y over del tx. We are putting the value of
value of del 2 y over del x2 and del 2 y over del 2 in फर्स्ट। इसके बाद देखेंगे कि del 2 y over del t स्क्वायर की वैल्यू दिस एंड del 2 y over del x की वैल्यू दिस, ये वैल्यू दोनों फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखिए अब क्या बनता है हमारे पास, del 2 y over del 2 value of this when x is d2t over dt square equal to c square t d2x over dx of t। now we separate the variable, it means x वाले टर्म dx के साथ होना चाहिए और आपका t वाला टर्म dt के साथ, बट कांस्टेंट टर्म चाहे तो आप c x के साथ लेने चाहे आपका t के साथ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा टर्म उठा के यहाँ ले जाइए आप और इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले जाइए। तो 1/x d2x over dx2 इक्वल टू 1/c² t और d2t over dt square and equal to of k या equal to of p से लेट कर लेंगे आप से। तो we taking the first and third and second and third, so now first and third, this is the first, this is the second and this is the third। तो 1/x d2x over dx2 equal to of p, क्रॉस मल्टीप्लाई d2x dx2 equal to x of p and d2x dx2 minus का xp equal to 0। now write this equation in the operator form, it means d square minus का xp equal to 0, सॉरी d square x और x equal to 0, so d equal to m and auxiliary equation, then m square minus p equal to 0, m square equal to p, तो m equal to under root of phi। तो root of this equation plus minus root of this equation m equal to under root plus minus of p। इट मीन्स अब आप देखेंगे कि m की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट p के अंदर आई है, तो p के अंदर आपका जानते हैं p कोई हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इट मीन्स मे बी सम केसेस आर बिकम्स हियर, सम केसेज यहाँ पे डिपेंड होंगे कि p की वैल्यू नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है, जीरो आती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका CF या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ तक इतना समझ आ गया होगा, सिंपल सा प्रोसेस है। सो आप इसको नोट करिए, प्लीज मेक अ नोट। देखिए आपके पास वैल्यू क्या आया, m इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p प्लस माइनस, इफ कंडीशन इफ p ग्रेटर देन 0, कंडीशन फर्स्ट p ग्रेटर देन 0, इट मींस p ग्रेटर देन 0, इट मींस वैल्यू ऑफ p पॉजिटिव। अगर वैल्यू p की पॉजिटिव आती है तो इसके अंदर अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हमारे पास रियल रूट आएगा ना, ठीक, रियल रूट आएगा। इट मींस रूट्स आर रियल। अगर रूट्स आर रियल आता है तो आप कैसे लिखते हैं, आपका x इक्वल टू c1 e टू द पावर अंडर रूट px प्लस c2 e टू द पावर माइनस अंडर रूट p ऑफ x। अगर हमारे पास कंडीशन ये बनती है कि p ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0 इट मींस पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू रूट के अंदर आएगी तो इट मींस रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। तो एक प्लस का p एंड दूसरा माइनस का p, तो आप इसके लिख देंगे x इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस। सेकंड कंडीशन, इफ p लेस देन ऑफ 0,
p लेस देन ऑफ जीरो, इट मींस नेगेटिव वैल्यू। p लेस देन जीरो, जीरो से छोटी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, और नेगेटिव होती है तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो क्या रियल रूट पॉसिबल है? नो, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अगर रूट्स इमेजिनरी आएंगे तो इमेजिनरी को लिखने का तरीका क्या है? x इक्वल टू c1 c2 कांस्टेंट हो गया, c3 cos अंडर रूट ऑफ px प्लस c4 sin अंडर रूट ऑफ px। दिस इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन p लेस देन 0। जब p की वैल्यू 0 से छोटी है तब ये कंडीशन आएगी, मींस रूट्स आर इमेजिनरी। एंड लास्ट कंडीशन, इफ p इक्वल टू 0, अगर p की वैल्यू 0 आती है तो प्लस का 0 माइनस का 0, इट मींस p का जो रूट आएगा 0, 0, और 0, 0 तो लिखने का क्या तरीका होता है? x इक्वल टू c5 प्लस x c6 और e टू द पावर 0 into x, imply that c5 प्लस x c6। इट मींस आप जानते हैं जब हमारे पास सेम रूट आते हैं तो कांस्टेंट टर्म लिखने के बाद नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म करते हैं तो उसमें उसी x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हियर आर 3 केसेज आर बिकम्स, केवल 3 केसेज यहाँ बनेंगे। फर्स्ट केसेज इज p ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल। सेकंड केसेज इज p लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। एंड थर्ड केसेज आर p इक्वल टू 0। समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आप, ये यहाँ पे आ गया फर्स्ट के लिए। अब सेकंड क्या था हमारे पास? कौन कौन सा लिया था आपने? फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। अब आप सेकंड और थर्ड कंसीडर करेंगे तो सेकंड वैल्यू क्या है? 1/c² t d2t over dt square equal to of p, imply that d2t over dt square equal to c square t in p। variable separation d2t over dt square minus c square t in p equal to 0। प्लीज मेक अ नोट। अब इसको रफ करते हैं, देखिए आप, देखिए, write this equation in the operator form. It means operator form of this equations d square minus c square p in t equal to 0, then d equal to m and auxiliary equation, then m square minus c square p equal to 0, m square equal to c square p, then m equal to plus minus c p in root। फिर आपका वैल्यू ऑफ m इन टर्म ऑफ दिस c इन अंडर रूट ऑफ p। हियर सेम प्रोसीजर ऑफ दिस मेथड कि p इज लेस देन 0, p इज ग्रेटर देन 0 या p इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन, इफ p ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल, ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल, देन t इक्वल टू हमारे पास 6 c7 e टू दी पावर c अंडर रूट ऑफ pt प्लस c8 e टू दी पावर माइनस c अंडर रूट ऑफ p ऑफ t। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। इफ p लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी। जब रूट्स आर इमेजिनरी है तो सेम प्रोसीजर है, आप लिखेंगे then t equal to c9 cos of c under root of pt plus c10 sin of c under root of p in t। This is the value of t। Now and last case is if p equal to 0, तो same procedure p equal to 0, 0, सेम प्रोसीजर आपका अप्लाई होगा। देन वैल्यू ऑफ t इक्वल टू c11 प्लस t c12 और e टू द पावर 0 इंटू t, इम्प्लाई दैट c11 प्लस t c ऑफ 12। आपके पास यहाँ पर देखिए 3 केसेज इन फर्स्ट कंडीशंस एंड 3 केसेज इन द सेकेंड कंडीशंस। तो वी आर टेकिंग ओनली हुज कंडीशंस of this equation
vibrating strings only imaginary part, it means less than 0. Please make a note. So now write a single line here. We are discuss only one cases p less than of 0. केवल हम यहाँ पर इस टॉपिक में पूरे में p लेस देन 0 के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की बात करता है। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आप जानते ही होगा, उसका वाइब्रेशन होता है, आफ्टर सम टाइम्स रिटार्डेशन में कम होता जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है, तो नेगेटिव की तरफ बढ़ता है। इट मींस p लेस देन 0 के लिए हम डिस्कशन करेंगे। तो p लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू x एंड t था। तो देखिए y इक्वल टू वैल्यू ऑफ x क्या था आपके पास, आपने लिखा होगा वैल्यू ऑफ x, ये था हमारे पास c3 cos ऑफ अंडर रूट px प्लस c4 साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ p ऑफ x, एंड फिर t के लिए वैल्यू क्या आया था हमारे पास, ये आपका 3 एंड 4, फिर था हमारा 5 एंड 6, 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10। तो आपका c9 cos c अंडर रूट p ऑफ t प्लस c10 sin c under root of pt of this. This is the complete solution of the partial differential equation of wave. Only we are discuss p less than 0. केवल बाकी केस हम नहीं लेंगे, p less than 0 के लिए डिस्कस करेंगे। सारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आपका डिपेंड है कि हम आपका वो कंडीशन से लेके चलेंगे जिसमें p लेस देन 0 आए। और p लेस देन 0 कब आएगा कि p की वैल्यू रूट के अंदर क्या होना चाहिए, माइनस में होगी, और माइनस में होगी तब हमारे पास इमेजिनरी रूट को कंसीडर करेगा। तो इसका ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसी पे डिपेंडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आपके एग्जाम पर्पज के लिए। तो तब तक के लिए पुराने वीडियो को आप देखते रहिए, उससे और बेटर समझ में आएगा आपकी में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पे डिपेंडेंट सम क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स एंड शेयर। थैंक्स।